Okay. Okay. Thank for confirmation, Khalil ji, Suresh ji. Thank you for confirming. Okay. So the today's session is on chart patterns, right? So I just want to share the screen. Just you all can see the screen, right? So before starting the session, I would like to know, like every session I ask this question: how many of you are doing it for the first time, and the session on chart patterns, and how many of you are doing it for the second or third time? You know, so that I can take the flow accordingly. Just please confirm first or second. Okay, Pankaj ji, Ashwin ji, third time. Me doing for okay, Vivek ji, first time. Narayan ji, first time. Okay, Pankaj ji for the first time. Okay, Gaurav ji for the second time. Yogesh ji, fourth time. Okay, Ujjwal ji, first time. Okay, Shankar ji, first time. No, Mahesh ji, not hear my voice. Please, Mahesh ji, please check. I think you have to check your system because everybody can hear me. Abhishek ji for the first time. Okay. So most of the participants are first time and some are those were for the second or third time. Okay. So, so what is this chart patterns basically? Okay. So these chart patterns are nothing but it's a visual representation of, visual representation of the price. Okay. It is, or we can say that it is the visual representation of the mindset of the investors and traders in the market. Investor, traders, okay, or the speculators. Okay. What is the mindset? What they are thinking about the price currently is being represented or fluctuated by these chart patterns. Okay. And these chart patterns form a very, strong part of technical analysis. Okay. And they have been used from last many, many years, from more than say 80, 100 years. Okay. These patterns have been used and these patterns are formed because of the human psychology. Okay. So as we know that market runs by the human psychology of fear and greed. These are the two psychologies which which runs in the market. Okay. And which price are fluctuating because of this fear and greed. So these are the two very strong emotions of fear and greed. Okay. And that is the psychological behavior, which is represented by price patterns called chart patterns. So chart patterns are generally of two types, okay, which we are going to discuss here. There are two types of chart pattern. One is continuation pattern and one is reversal pattern, right? I just want to disable the annotations. Okay. So for some are reversal pattern and some are continuation patterns. So what are reversal patterns? The patterns, okay, when the patterns are formed in a downtrend, suppose the market is trending down, okay, and they start reversing. They are reversing from down to up, okay, then that is called a reversal pattern. Or it can be reversal from up to down. Suppose the stock was going up and now it is reversing from up to down. Okay, it's turning down. So that is called a bearish reversal. So it can be bullish reversal and a bearish reversal. Then again, one pattern we call it a continuation pattern. What are continuation patterns? Continuation patterns are the patterns which continue. Suppose the market was going up or the stock was trending up. It took some rest. It took some breath. Okay. It's resting for some time. It started trading in a range and again started its previous move. Suppose it was trending up, it traded in a range and then again started moving up. Okay. That's a uptrend continuation. And then again, we have a downtrend continuation. So what is a downtrend continuation? Downtrend continuation is a continuation when the stock price is trending down. Okay. So it rests for some time. The price halted for some time. It started trading in range and then again start moving down. Again, the price started going down. That is a downward continuation. So based on this uptrend continuation and reversal pattern, there have been various chart patterns which we will learn today. We will try to find out how these patterns are formed, okay, and how to set targets and stop losses while using this chart patterns, okay. Harenji cannot hear my voice. I think others can hear my voice except Harenji, okay. So please, I think those who are not hear my voice, please check your system or speakers.
Okay, so many patterns I have discussed previously. Okay, so today I want to start with some new patterns, so that those who are attending for the second, third, or fourth time, for them it is not a repeated thing. Okay. Okay, no voice. I am Mahesh ji also could not hear voice, but I think Khalil ji has confirmed that he can hear my voice. Request you please, everybody confirm low voice. I can hear. Devi ji can hear me. Okay, audio and video. Okay, both are okay for Rudra ji. Audible, audible. So for most of the participants, I am audible. Okay, but for some I am not audible. I don't know what is the reason. Okay, Kaushik ji can hear me. Okay, Azim ji can also hear ji. Vivek ji can also hear me. So around 95% of the people are writing that they can hear me. Okay, so I'm continuing with the class. So based on this reversal pattern and continuation pattern, there have been certain chart patterns which have been formed. Okay, so today we'll discuss with these patterns. Okay, so I want to start from the pattern. I'll not start from the beginning because there are some participants who are from the beginning. Okay, for them already have done these patterns. So I'll start with. It will not make any difference if we'll start from the middle. Okay. So wedge pattern. I want to start with. I'll start with a bullish and bearish flag pattern. What are flag patterns? Okay. So flag patterns are the continuation patterns. Flag patterns are continuation patterns. It means it continue. If it is an uptrend, it will continue its uptrend move. If it's a downtrend, it will continue its downtrend move. So in uptrend, if a flag is formed in an uptrend, we call it a bullish flag. If it is forming in a downtrend, we call it the bearish flag. Now we'll see how this flag pattern are formed and how to set target and stop loss by using this flag pattern. Okay. So you can see there is one bullish flag and there is one bearish flag, right? So this bullish flag is formed in an uptrend. So this is an up. The price has given a sharp up move. Okay, you can see it has given a sharp up move, and then the price has started trading in a range. Okay, it can be a rectangle range, it can be a slanting range. Okay, so it is giving a shape of flag and a pole. That's why this is also called flag and pole pattern also. Okay, you can say bullish flag or flag and pole pattern because this represent as a pole and this represents the flag. Okay, so we can call it the bullish flag and pole pattern. So this is a pole and this is a flag, and the flag is trading in a range. Whenever the stock give a breakout of this above this trend line, okay, above this trend line, it's called a bullish flag breakout. It's called a bullish flag breakout. Okay, so now once it closes above this, okay, the breakout happens. Now how you'll set the target, okay, of bullish flag? So there are two ways of setting target of a bullish flag. So I'll also repeat in Hindi because some want me to speak in Hindi also. ठीक है, तो इसका दो तरीके हैं जिससे आप इसका टारगेट लगा सकते हैं. ओके, तो पहला सिस्टम क्या है टारगेट लगाने का? ये जो रेंज है, इस फ्लैग का जो डिस्टेंस है, इसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा, ओके, वो ब्रेकआउट पॉइंट पे you'll get the first target. सपोज ये आपका प्राइस ऊपर का हाई है 100 रुपीज, ओके, एंड नीचे का लो है 20 रुपीज. दिस लो इज 20 रुपीज एंड दिस हाई इज दिस लो इज 80 रुपीज एंड दिस हाई इज 100 रुपीज. तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 20 रुपीज का. ओके, तो ये 20 रुपीज का डिफरेंस है. एंड सपोज आपका ये 95 पॉइंट पे ब्रेकआउट है, 95 के प्राइस में ब्रेकआउट है, तो 95 प्लस 20 कितना हो गया 115, राइट? So 115 will be the first target of this flag. Okay. Now what will be the second target? Second target जो होगा वो आपका ये जो पोल है, ये पोल का डिस्टेंस, ओके, ये पोल का डिस्टेंस अपने ब्रेकआउट पॉइंट से ऐड करेंगे. सपोज ये आपका 100 रुपीज है, ओके, और ये आपका 50 रुपीज है. ये नीचे का पॉइंट पोल का जो लो है वो 50 रुपीज है. सो 100 minus 50, द डिफरेंस इज 50 रुपीज. ओके,
एंड द ब्रेकआउट इज 95 पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट? तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा? सेकेंड टारगेट 145 रुपीज का। गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट टारगेट हो गया आपका 115, सेकेंड टारगेट हो गया 145। तो कैसे अपने टारगेट कैलकुलेट किया? फर्स्ट टारगेट कैलकुलेट करने के लिए अपने ने हाईएस्ट डिस्टेंस इस हाई का इस लो का डिफरेंस निकाला, जो ब्रेकआउट पॉइंट पे अपने ऐड कर दिए, तो अपने को टारगेट मिला फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट ये हाई और ये जो पोल का लो है इसके बीच में डिफरेंस अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे तो हम लोग को सेकेंड टारगेट, राइट? जनरली टारगेट अपने को क्या होता है? पैटर्न्स गिव टारगेट। नाउ हाउ टू सेट स्टॉप लॉस? पैटर्न्स जो है वो अपने आप को स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। वी हैव टू डिसाइड स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन अ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ओके, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, तो जनरली वी रिकमेंड कि आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो उसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। 1:2 मीन्स अगर आप 100 रुपीज का प्रॉफिट 200 का अगर प्रॉफिट सोच रहे हैं तो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस मिनिमम रखना होगा, राइट? और टारगेट आपको 200 पॉइंट का रखना होगा। सो 1:2। सो अगर इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं, इवन इफ यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स एंड इफ यू आर रॉन्ग इन 5 ट्रेड्स, 5 ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है एंड 5 ट्रेड्स में भी आप प्रॉफिट करते हैं, इवन यू आर 50% राइट, देन ऑल्सो यू विल बी प्रॉफिटेबल, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ हाउ यू कैन पुट स्टॉप लॉस? मैंने पहला तरीका आपको बताया, या यू कैन प्लेस विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप लगा सकते हैं। दूसरा आप लगा सकते हैं अगर ये फ्लैग का जो ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के लो के नीचे। ओके, ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ, जो कैंडल ने आपका ब्रेकआउट, जो कैंडल स्टिक चार्ट है आपको बेटर दिख पाएगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा उसको। तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, ये जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे, एंड थर्ड जो होगा वो इसके नीचे होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो जाता है दैट विल बी द थर्ड आपका स्टॉप लॉस। बट जो भी स्टॉप लॉस आप डिसाइड करेंगे इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1:2, ठीक है? अगर आपका स्टॉप यहाँ पे लाने में इसके नीचे में अगर 1:2 से ज्यादा हो जा रहा है देन आप क्या करेंगे? जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लेंगे। ओके, सो दैट इज द ट्रेड मैनेजमेंट। तो उस हिसाब से अपना आप लॉस को मैनेज करेंगे। ओके, इफ इन केस इफ द ब्रेकआउट फेल्स, ठीक है, बहुत सा टाइम होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है उसके बाद फेल हो जाता है, ठीक है? So whatever these patterns are all about probability. It is not a surety कि अगर ये ब्रेकआउट दे दिया है 100% तो ये ऊपर ही जाएगा, या नीचे का डाउनसाइड ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे ही जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि चांसेस आर हायर कि ऐसा होगा, ठीक है? बट उसके बाद भी वी कैन गो रॉन्ग। सो इफ वी आर गोइंग रॉन्ग, फॉर दैट वी यूज स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट आवर लॉसेस। ओके, क्लियर है? Anybody have any question on this bullish flag के ऊपर? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इट डाउन। कोई टारगेट या स्टॉप लॉस समझ में अगर नहीं आया है? Any questions? Okay, so you can see here there are some can we put super trend and stop loss? Yes, you can. Vaibhav ji, you can use super trend also. Okay, so different ways, that is a good point actually. See, stop loss आप कोई भी तरह से यूज कर सकते हैं। there are wide varieties of ways of putting stop losses, support and resistance देख के, ठीक है, आपके कहाँ पे बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो इट इज नॉट दैट ओनली वी हैव टू फॉलो, बहुत से चीज को अपने को देखना होगा, रिस्क रिवॉर्ड देखना होगा, सपोर्ट देखना होगा। जैसे कि गौरव जी ने कहा सुपर ट्रेंड देख सकते हैं, अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा गया। आरएसआई देख सकते हैं, आरएसआई अगर नीचे चला जा रहा है, वीक हो गया, 50 के नीचे चला गया या 30 के नीचे चला जा रहा है। सो दे आर डिफरेंट एन नंबर्स ऑफ वेज यू कैन यूज स्टॉप लॉसेस। मैं जो आपको बोल रहा हूँ दे आर few types of stop losses which I am saying you, but you can put stop loss as per your ways. Okay, तो टारगेट्स कोई भी जो भी पैटर्न्स होते हैं आपको टारगेट्स दे देते हैं कि टारगेट्स ऐसे निकलता है, स्टॉप लॉस नहीं देता है। स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लेना पड़ता है। कोई 5,000 में किसी के लॉस होने में कोई पैनिक हो सकता है, कोई 5 लाख तक फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है, किसी को 500 में भी फर्क पड़ सकता है। तो इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसमें कौन कितना लॉस देख सकता है या कितना प्रॉफिट, वो अगर प्रॉफिट में तो कितना ड्रॉडाउन देख सकता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम
person to person, right? Okay, Pankaj ji want me to explain target again. Okay, I'll repeat. या खलील जी का भी कुछ क्वेश्चन है. Where is first stop loss? Okay, Dipali ji, stop loss while buying or selling. How to use super trend? Stop loss used on closing basis of a day. Please explain with example. If explain super trend, if RSI is oversold region, then how can we risk reward ratio 2:1? If RSI is oversold region of 94, 94 oversold region is below 30 होता है संदीप जी. Oversold region is not 94. 94 is an overbought region. Okay. तो मैंने सब क्वेश्चंस देख लिया, मैं एक बार फिर सब रिपीट कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुपर ट्रेंड से कैसे स्टॉप लॉस रखूं. ओके, और एग्जांपल्स चाहिए. अगर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ओके, सुपर ट्रेंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल. स्टॉप लॉस, या स्टॉप लॉस ललित जी, स्टॉप लॉस और शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस. व्हाई स्टॉप लॉसेस शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या होता है इंट्राडे में, जो बहुत ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट में, दे आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स आल्सो, दे नो वेयर दे नो अ साइकोलॉजी. वो अपनी साइकोलॉजी जानते हैं अपने कहां तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं. तो दे आर स्टॉप लॉसेस हंटर्स. मार्केट में स्टॉप लॉस हंटर होते हैं जिनको पता होता है हमने आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है. तो वो लोग वहां तक लेके जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं, फिर वो वापस प्राइस ऊपर खींच लेते हैं. तो इसीलिए क्लोजिंग बेसिस में प्राइस को इंपॉर्टेंट रखना, क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है. ओके, तो कि वो जो स्टॉप लॉस हंटर है आपका स्टॉप ट्रिगर करा के वापस प्राइस को ऊपर नहीं ले जाए. कितनी बार आपने देखते होंगे कि भाई अपने ने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, बट वापस से प्राइस ऊपर चला गया अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद. तो बहुत लोगों के पास, मेरे पास क्वेश्चन आया ऐसा, क्या सर ये लोग अपना सौदा देख पाते हैं क्या? इनको पता रहता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है, कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद ये वापस से प्राइस बढ़ गया? तो मैं आपको बता देता हूँ सर, इनको सौदा नहीं पता रहता है अपना, इनको अपना साइकोलॉजी पता रहता है कि वेयर वी विल प्लेस अ स्टॉप लॉस. तो दे आर वेरी एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स. दे नो आर साइकोलॉजी. वो ये सब चार्ट पैटर्न जानते हैं कि कौन कब रिएक्ट करेगा, कौन ब्रेकआउट पे रिएक्ट करेगा, रिटेल इन्वेस्टर की एक कितनी क्षमता होती है रिस्क कैपेसिटी की, वो कहां तक देख सकता है. दे ऑल नो ऑल दिस थिंग्स. दे प्ले विद आवर साइकोलॉजी. ओके, तो कितनी बार आपने देखा ब्रेकआउट हुआ, आपने सब कुछ देखा, राइट हुआ, राइट ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस आपने पोजीशन ली, उसके बाद आपका स्टॉप ट्रिगर हुआ वापस, बट आपने जो सोचा था वहीं पे पोजीशन किया, बट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. अब उस वक्त आप सौदे में नहीं है. तो क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो जेन्युइन प्राइस का फॉल है. इट इज नॉट बाय सम मैनिपुलेटर्स. वो जेन्युइन प्राइस फॉल है, दैट इंडिकेट्स. ओके ओके, सो होप दिस इज क्लियर. तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस में लीजिए. ओके, सो अब मैं आपको ये बुलिश फ्लैग मैंने बताया, एक बार मैं पैटर्न्स का उसका टारगेट बता देता हूँ जिनको डाउट था. ठीक है, तो पहला टारगेट मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा. ये जो लाइन के बीच में, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ऊपर का पॉइंट 100 रुपीज है और नीचे का पॉइंट 80 रुपीज है लो. तो डिफरेंस क्या हुआ? 100 माइनस 80, दैट इज 20 रुपीज. ठीक है, और ब्रेकआउट मैंने लिया 95 रुपीज के प्राइस में ब्रेकआउट हुआ है इसका. ठीक है, तो 95 प्लस 20 गिव मी 115. तो फर्स्ट टारगेट मेरा क्या हो जाएगा? 115 का, राइट. और मेरा सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा? सेकंड टारगेट मैंने बताया था, ये जो पोल है ना, ये पोल, ये हाई और ये लो के बीच में डिफरेंस. ये हाई जैसे 100 रुपीज का है और ये लो है 50 रुपीज का. ओके, तो 100 माइनस 50 इज 50 रुपीज. और यहाँ ब्रेकआउट था 95 पे, 95 प्लस 50 दैट इज 145 का मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा. ओके ओके, सो विच इज अ गुड बाइंग RSI लेवल, वी विल डिस्कस दिस. ठीक है, अभी पहले चार्ट पैटर्न्स कर लूं, देन अदर विल इंडिकेटर्स, विल टॉक लेटर अबाउट इंडिकेटर्स. ओके, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द चार्ट पैटर्न्स. क्लियर है? तो अब मैं आपको स्टॉकेज में लेके चलता हूं, जहां पे आप मैं स्क्रीन शेयर चेंज करूंगा. एक बार मैं आपको और बेयरिश फ्लैग बता देता हूं, देन आई विल चेंज. ओके, सो बेयरिश फ्लैग क्या होता है? आपका डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है. ये जैसे बुलिश था, तो बुलिश फ्लैग बनने के लिए ट्रेंड अप होना चाहिए, राइट. इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. और बेयरिश फ्लैग इज आल्सो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए. इट इज आल्सो अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो स्टॉक ट्रेंडिंग डाउन कर रहा था, फिर थोड़ा क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिला, प्राइस में बाइंग आई. ठीक है, एंड वापस से स्टॉक
इसके नीचे चलने लगा एंड इट्स कंटिन्यूज डाउन मूव जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं bearish flag. Price was trending down, it took support at this level and started trading in a range, okay, took resistance यहाँ पे and again the price started falling. This is a bearish flag, ठीक है। तो bearish flag का भी उल्टा होता है, जैसे अपने bullish flag में टारगेट निकालते हैं तो ये हाई और लो के बीच में जो गैप होता है वो अपने सेपरेट, सपोज ये 100 रुपीज का है, ओके, और ये 80 रुपीज का है, ओके। तो 100 माइनस 80 20 रुपीज, ओके। और अगर 80 पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो 80 माइनस 20 नीचे का डाउन साइड हो जाएगा, 60 रुपीज का टारगेट हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, ओके। और वैसे ही सेकंड टारगेट कैसे निकालेंगे, पोल, ये पोल का डिस्टेंस ब्रेक डाउन पॉइंट से माइनस करेंगे तो अपने को सपोज ये 80 रुपीज है, ओके, और यहाँ का डिफरेंस है से ये 80 का पॉइंट है, ये आपका हाई था से 120 और ये 80, तो डिफरेंस इज 40 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे अगर 80 पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो 80 माइनस 40, तो 40 विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर दी बेयरिश फ्लैग। तो जैसे बुलिश में किए थे ऊपर में ऐड करते थे, वैसे बेयरिश में नीचे में अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द टारगेट ऑफ द बेयरिश फ्लैग। So bearish flag is a continuation pattern. These flags are applicable in any time frame, intraday or short term. See, these patterns can be applicable in any time frame. तो जो भी टाइम फ्रेम में बनेगा उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट होगा। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं 15 मिनट्स चार्ट या हाफ ईयरली आधे घंटे 30 मिनट्स चार्ट, तो उसी हिसाब से आपका फ्लैग एंड पोल बनेगा और उसी हिसाब से आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट चार्ट में यूज कर रहे हैं तो सेम, बट द इसका वैल्यू उतना तब बढ़ता है तो जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम में होता है। तो मिनिमम वी से टू यूज इट फॉर दी डेली चार्ट। स्टॉकेज में भी जो अपने बनाए हैं स्टॉकेज में, दैट इज ऑन डेली चार्ट्स पे बना हुआ है, ओके। बट आपको अगर इंट्राडे में करना है तो यू हैव टू यूज फॉर इंट्राडे पैटर्न्स के हिसाब से, तो इंट्राडे में वो चार्ट पैटर्न्स बनना चाहिए। फ्लैग में बाय हो सकता है क्या पहले ब्रेकआउट के पहले? ब्रेकआउट के पहले पैटर्न, अगर आप पैटर्न के हिसाब से काम करना चाहते हैं आकाश जी, तो आप पैटर्न के हिसाब से तो ब्रेकआउट पे ही होता है, बट आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर खेलना चाहते हैं तो यू कैन प्ले, ठीक है। तो अगर आपने बुलिश फ्लैग देखा है तो वेन एवर इट इज कमिंग टू अ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है, आपने बाय किया, फिर आपने रेजिस्टेंस में बेच दिया, और छोटे ट्रेडिंग स्मॉल गेन्स के लिए यू कैन डू दैट। फिर सपोर्ट पे आया, आपने बेचा, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर बाय किया, इसके नीचे जस्ट थोड़े से नीचे स्टॉप लॉस लगा के, एंड यहाँ पे आपका टारगेट लेवल हो जाएगा। तो यू कैन डू दैट इन अ रेंज बाउंड ट्रेडिंग, ठीक है। बट अपने स्टॉकेज में यू विल गेट अलर्ट ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट, ओके। स्टॉकेज के हिसाब से आपको अलर्ट मिलेगा ब्रेकआउट में ही, और अपने वही पैटर्न्स को महत्वता देंगे जो ब्रेकआउट होंगे, ठीक है। आप अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी खेल सकते हैं। What is the psychology of this pattern? वसंत जी ने क्वेश्चन किया, what is the psychology of this pattern? The psychology is that the overall trend of the stock is up, ठीक है। तो जिन्होंने स्टॉक्स बाय किया था पहले, उनको एक अच्छा रन मूव हो गया और लोगों ने वापस से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चालू कर ली, जिन्होंने लगा प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी यहाँ पे। सो द स्टॉक्स, यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड सप्लाई आपका बैलेंस है, देयर इज अ बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओके, एंड द स्टॉक इज इन अ प्रॉफिट बुकिंग मोड। तो जिनको और ज्यादा मतलब प्रॉफिट, जो नीचे बाय किया है, एक अच्छा रन मिल गया है, दे हैव स्टार्टेड booking their profit. But since the overall trend of the stock is up, fundamental is good. So I'm talking, this is a technical pattern, but technical के पीछे भी कहीं ना कहीं fundamental factors रहते हैं, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल के से टेक्निकल बनता है, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो कोई स्टॉक्स अच्छा आएगा, मैं ये भी बता देता हूँ कैसे टेक्निकल्स में फंडामेंटल्स रहते हैं, राइट। कोई स्टॉक्स में अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, कोई स्टॉक्स में लोग बहुत ज्यादा बाई कर रहे हैं, तो वो कैसे दिखेगा कि उसमें वॉल्यूम ज्यादा आने लगेंगे, लोग बाई करने लगेंगे ज्यादा से, या रिजल्ट आ चुका है, या रिजल्ट का अच्छा एक्सपेक्टेशन है, या कोई भी अच्छा न्यूज हो रहा है, प्राइस में बड़ी कैंडल्स फॉर्म होने लगेंगी, बुलिश कैंडल। तो those who have done the fundamental part, now they are investing in the stock market or any stock, okay, and which is being reflected, the research is being reflected in the that technical part, okay। तो जैसे किसी कोई लार्ज वॉल्यूम में किसी ने बाय किया है, ठीक है,
अपने जब देखते हैं कि बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है, तो अपना टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस एंड वॉल्यूम आर द टू मेन फैक्टर। तो अपने जब वॉल्यूम देखते हैं तो किसी ने बाय किया बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, तो जब कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाय करता है तो मतलब क्या है, उसने कोई बड़े प्लेयर ने बाय किया है। तो जब भी कोई बड़ा प्लेयर बाय करता है या कोई एफआईआई या कोई बिग प्लेयर बाइंग कर रहा है या कोई प्रमोटर बाइंग कर रहा है, ठीक है, इट्स बिकॉज देयर इज सम फंडामेंटल फैक्टर, ठीक है, जो अपने को हो सकता है अभी नहीं पता हो या बाद में पता चले, तो वो वॉल्यूम में फ्लक्चुएट कर जाता है। सो इनडायरेक्टली फंडामेंटल टेक्निकल आल्सो गिव्स हिंट टू फंडामेंटल, राइट? क्लियर? तो मैं थोड़ा डिविएट हो गया टॉपिक से। तो ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी खेल सकते हैं, बट स्टॉकेज में आपको ब्रेकआउट पे ही अलर्ट मिलेगा, राइट? तो ये बेयरिश फ्लैग एंड बुलिश फ्लैग। तो अब अब देखते हैं स्टॉकेज ने कैसे अलाइन किया है। वॉल्यूम रेड और ग्रीन सेम होते हैं क्या? वॉल्यूम रेड एंड ग्रीन, द डी फैक्टर, आप अपना नाम सही नाम रखें सर तो होगा, मैं बोल पाऊंगा नाम। ओके, so you can change the name from the D factor to your original name. Okay, so volume देखिए, अगर प्राइस, ओके, अगर प्राइस अप साइड बंद हुआ है या ओपन के ऊपर बंद हुआ है, दो दो तरह से वॉल्यूम ग्रीन होता है। वॉल्यूम ग्रीन कब होता है? जब लास्ट डे से प्राइस ऊपर बंद होता है तो वॉल्यूम ग्रीन होता है, या जब लास्ट डे से प्राइस वॉल्यूम कम होता है, प्राइस कम होता है तो वॉल्यूम रेड होता है। ओके, तो रेड वॉल्यूम मतलब अगर क्लोजिंग प्राइस लेस देन प्रीवियस क्लोज, ओके, एंड ग्रीन वॉल्यूम क्लोजिंग प्राइस मोर देन प्रीवियस क्लोज, ठीक है। और भी एक वे है, अलग अलग चार्ट पैटर्न अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। अगर ओपन ओपन प्राइस से नीचे बंद हुआ है, ठीक है, मान लीजिए प्राइस ओपन खुला ऊपर था बट बंद हुआ नीचे, बट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, ठीक है, तब भी वो आपको रेड दिखा सकता है क्योंकि ओपन से नीचे है। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न का सेटिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग आते हैं, ठीक है। या फिर आप देखे होंगे प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, बट ओपन प्राइस से जहां पे सुबह में प्राइस खुला था बट बंद उसके ऊपर हुआ है, राइट, तब वो कैंडल भी ग्रीन हो जाएगी, ओके, और आपका वॉल्यूम भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये चार्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है कौन सा चार्ट फैक्टर आप यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर? ओके, सो मैं स्टॉकेज के ऐप में चलता हूँ नाउ। आई एम स्क्रीन शेयर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप सबको स्टॉकेज ऐप दिख रहा है। स्टॉकेज ऐप, एवरीबॉडी कैन सी द स्टॉकेज ऐप? ओके, ओके, आई गॉट द कंफर्मेशन। सो यहाँ पे स्टॉकेज ऐप पे आप देख सकते हैं अंडर प्यो एनालिटिक्स, ठीक है, ये प्यो एनालिटिक्स में देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो अपने ने अभी फ्लैग पैटर्न डिस्कस किया तो मैं फ्लैग पैटर्न खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है फ्लैग पैटर्न क्या होता है। अ फ्लैग पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट शोज कैंडल कंटेन इन अ स्मॉल पैरेललोग्राम। इट इज एन एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में चलता है, which shows counter trend move that follows after a sharp price movement। तो sharp price movement के बाद एक काउंटर ट्रेंड, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे हो रही है वो एक ट्रेंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यू कैन सी वन बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलिश फ्लैग ग्रीन में दिया हुआ है क्योंकि ये बाइंग वाला है, बुलिश है, और बेयरिश फ्लैग आपका रेड में दिया हुआ है बिकॉज इट इज सेल साइड का ही बेयरिश फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज टैब कॉल्ड रीसेंट एंड पास्ट, ओके, देन देयर इज अ फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे आप स्टॉक लगा सकते हैं, मेजर स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स, एफएनओ स्टॉक्स, निफ्टी 50, 500, 200 अपने ऑप्शन से। वी रिकमेंड कि आप मेजर स्टॉक्स यूज करें, ओके, जो बाय डिफॉल्ट है। रिसेंट मतलब होता है जो स्टॉक्स अभी रिसेंटली आए हैं, एंड पास्ट मींस जो आ चुके हैं, आके अब नहीं आए हुए, आइदर उनका रिस्क रिवॉर्ड ऑफ फेवरेबल नहीं है या काफी टाइम हो चुका है उनको आए हुए, 3 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो इट जनरली मूव टू पास्ट, फ्रॉम रिसेंट टू पास्ट, ओके। तो बुलिश फ्लैग में अभी रिसेंट में यू कैन सी देयर इज नो स्टॉक, अभी कोई स्टॉक रिसेंट में नहीं आया है। तो पास्ट में यू कैन सी, ठीक है, तो पास्ट में ये 23 अप्रैल को आया था, ठीक है, एट
247. देन यू कैन सी IIFL फाइनेंस, ठीक है, ये अपना आया था 5 अप्रैल को 357 में, अभी प्राइस है 401. तो एक बार इसे देखते हैं खोल के. बहुत छोटा सा बुलिश फ्लैग बना है, ठीक है, बट यू विल गेट एन अलर्ट, ठीक है. तो ये आपका था एक फ्लैग, और ये आप छोटा सा पोल, ठीक है. तो प्राइस जब भी इसके ऊपर क्लोज होगा, फ्लैग के ऊपर होगा, तो आपको इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, जब भी ब्रेकआउट हुआ, इट हैज गिवन विद अ शार्प वॉल्यूम, मींस यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है. डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हुआ है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि IIFL का ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग का. ओके, और देख लेते हैं. HBL पावर 3 अप्रैल को बना था, ठीक है. ये 3 अप्रैल को बना था, ठीक है. दिस वॉज फॉर्म्ड ऑन 3 अप्रैल यहाँ पे. उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, देन अगेन इट हैज कम डाउन एंड वापस से ऊपर गया, ठीक है. NHPC, यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा कि ब्रेकआउट हो गया प्राइस का, ठीक है. NIACL, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस हैज वेंट अप एंड देन अगेन इट हैज केम डाउन, ठीक है. और प्राइस एक नीचे के साइड में है, बट अगर देखेंगे तो अभी भी ये बुलिश फ्लैग के अपने नीचे बंद नहीं हुआ है. जब ये बुलिश फ्लैग के नीचे बंद हो जाएगा, तो आपका स्टॉप ट्रिगर कर जाएगा. तो मैंने आपको स्टॉप्स के 2-3 तरीके बताए थे, जिसमें से मैंने कहा था, एक स्टॉप लॉस बताया था कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर बंद हो जाता है, तो दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है. तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप जिनका कम रिस्क लेता है, वो इस कैंडल के लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे मैं देख रहा हूँ आसपास में एक बहुत छोटी सी कैंडल है, 238 का लो है, यहाँ पे 235 का लो है, और इसका लो है 243. तो आप 243 से लेके 232 के अंदर में अपने रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है. तो जिन्होंने क्लोजिंग बेसिस में यहाँ का स्टॉप लॉस लिया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा. अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 232, इसका लो बनाया था 232, ओके. ये देखिए, लो था 232, और इस कैंडल का भी लो है 238, इस कैंडल का लो है. सो आप मैंने जब कहा था आपको ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, तो अगर ब्रेकआउट कैंडल का नीचे का लो लेंगे 243, कुछ फिल्टर दे देंगे अराउंड 240, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा. तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यू विल बी आउट फ्रॉम दी स्टॉक, नो प्रॉब्लम, ठीक है. और पहले इसमें अपने आप टारगेट अगर देखेंगे, इसका टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का हाई मैंने देखा था, इस कैंडल का हाई है अराउंड 262 का, ठीक है. और लो है 209, 10 पकड़ लेते हैं, तो अराउंड 50 रुपीज का टारगेट है, ठीक है. तो ये ब्रेकआउट पॉइंट क्या हुआ मेरा यहाँ पे, अगर मैं इसको लूंगा, इसका हाई 266 का यहाँ पे हाई है, तो 266 प्लस 50 रुपीज में लगाऊंगा, तो अराउंड 310. तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है. 325 का, 324 का टारगेट बनाया था, हाई बनाया था, राइट. तो अपने कैसे फर्स्ट टारगेट अचीव किए, फर्स्ट टारगेट अचीव करने के लिए आप टेकन द हाई, इसका मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ एग्जैक्ट. इसका हाई था, एक मिनट, यू ऑल ऑल्सो कैलकुलेट द टारगेट, इसका टारगेट आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए प्लीज.
314 का टारगेट आ रहा है, 314। आप लोग का यू ऑल्सो कैन शेयर द टारगेट्स विथ मी। यू ऑल कैन शेयर द टारगेट्स। Approximately, Dinesh ji, approximately 310. Okay. Any more answers? Okay, Chirag ji, 209.5 to 60, around 52 rupees, approximate 320. Okay, perfect, Chirag ji. Dinesh ji, tell about NHPC. We'll discuss NHPC also, sir. एक एक करके करता हूँ। ओके, तो जिन्होंने टारगेट लिखा, परफेक्ट टारगेट निकाला 314, 320। मेरा भी टारगेट अराउंड आया 314 रुपीज का। ओके, तो 314 का टारगेट आया, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 262 प्राइस पॉइंट में, और डिफरेंस आया 53 रुपीज का। ओके, तो 53 रुपीज मैंने ऐड किया 261 में, तो 314। तो इसने हाई बनाया यहाँ पे 324.70। तो फर्स्ट टारगेट अचीव किया। तो अपना 53 रुपीज का टारगेट आ रहा है, तो स्टॉप लॉस अपने क्या रखेंगे? तो इस जो ब्रेकआउट कैंडल अपने 261 पे, मतलब वहां से 25, 26, 27, 28 रुपीज का टारगेट रख सकते हैं। तो मीन्स 261 माइनस 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से करेंगे। तो मैं अगर 26 का टारगेट, 27 का टारगेट माइनस 27 कर देता हूँ रुपीज, तो 234 के आसपास में आपका टारगेट स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, तो 234 के स्टॉप लॉस आ रहा है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो 234 का स्टॉप लॉस यहाँ, जिनको उतना भी स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल जो है, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि 243 होगा। बट परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? 234 का। ठीक है, 234 के नीचे यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे 232 का लो आ रहा है, बट उससे पहले आपका टारगेट 1 अचीव हो गया है यहाँ पे, राइट। सो ये आपका बुलिश फ्लैग था। ओके, एनएचपीसी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। एनएचपीसी का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका हाई अगर देखेंगे यहाँ, अब मैं इसका हाई था 87.80। ओके, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 87.80 माइनस लो क्या है इसका? 80.70। 7 रुपीज, 7.10 का टारगेट। तो ब्रेकआउट प्राइस क्या था एनएचपीसी का? एनएचपीसी का ब्रेकआउट पॉइंट था 87.80। तो 87.80 में प्लस 7.10 मीन्स 94.90, मतलब 94, 95 के पास में आपका टारगेट आ रहा है इसका। ठीक है, तो जो कि इसमें फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से सिर्फ 7 रुपए का टारगेट था फर्स्ट टारगेट, जो कि 94, 95 का था, यहाँ पे अचीव हो गया। अगर सेकंड टारगेट अगर इसमें देखेंगे तो इसका पोल काफी छोटा है, जो कि सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका हाई है सेम है 87.80, लो ये वाला लो कंसिडर करेंगे, ये लो है आपका 73.60। तो अगेन इफ आई कैलकुलेट 87.80 माइनस 73.60, तो 14 रुपीज 20 पैसा। तो 14 रुपीज 20 पैसा अगर मैं ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करूंगा, दैट इज ब्रेकआउट पॉइंट इसका 87.80। तो 87.80 प्लस 14.20, तो 102 रुपीज का इसका सेकंड टारगेट आ रहा है, राइट। सेकंड टारगेट इज 102, जो कि इसने आई थिंक वो भी अचीव कर लिया है। नहीं, इसका हाई क्या था?
यहाँ पे हाई बनाया 101.35, तो ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के पास में है यहाँ पे। ओके, सेकंड टारगेट के पास में है, तो क्या आप इसमें ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे? तो क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो इसमें आप ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑल इसका आपका फ्लैग के हिसाब से भी टारगेट अचीव हो गया और पोल के हिसाब से भी टारगेट अचीव हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे लेते तो आप ले सकते थे, बट अभी करेंटली इसमें नहीं लेना चाहिए पोजिशन। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Okay. Please explain stop loss in this once again. Chirag ji. Okay. Clear. Okay. How many candles should be in a flag? Okay. I'm still in this trade. NHPC की न्यूज आ रही थी विदेश कंपनी के लिए 7 कोलैबोरेशन। सो देखिए न्यूज अब ऐसा नहीं कि टारगेट अचीव हो गया है तो स्टॉक और ऊपर जाएगा नहीं या यहीं से गिर जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, अगर आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टारगेट अचीव हो गया तो स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। यू कैन डू, आप अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट इट, ठीक है, आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं, आपको आप यहाँ पे इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी अभी भी लॉस स्टॉप लॉस आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, आप जो लास्ट स्विंग लो बनाए यहाँ बड़ा था उसके बाद करेक्शन दिया था, तो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो नाउ इट्स ट्रेड मैनेजमेंट, आप अपनी ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, इफ यू कैन प्लेस अ ट्रेलिंग तो आप बड़ा रन भी इससे आपको मिल सकता है। तो जो स्टॉक बहुत बड़े रन देते हैं तो उनमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ही मिल सकता है। ठीक है, तो यू कैन होल्ड द स्टॉक विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ताकि आपका कोई इसमें से बड़ा कोई लॉस नहीं हो। ठीक है, तो छोटा लॉस से आप अगर स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो यू आर विद थोड़े प्रॉफिट के साथ अगर ट्रेल कर लेते हैं, कुछ प्रॉफिट आप अपना जो आ रहा है ऑलरेडी उसको लूज कर सकते हैं, बट प्रॉफिट में ही रहेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, बट आपका बड़ा कोई लॉस नहीं होगा इफ यू डू इट बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉक में इन्वेस्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर बट नॉट शो इन स्टॉकेज। तो देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देखिए स्टॉकेज में क्या है, देयर इज एन एल्गो यूज किया हुआ, लॉजिक दिया हुआ है। तो जब तक वो पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो हो सकता है अपने जो विजुअली जो देखते हैं तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट दैट क्योंकि थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा, राइट, तो स्टॉकेज ऐप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, या अपने को वो हेड एंड शोल्डर लग रहा है, बट हो सकता है वो कुछ वजह की वजह से वो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं हो, इसलिए नहीं आ रहा है। दोनों चीज हो सकती है, या कि वो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है जो बना है, बट स्टॉकेज में कुछ क्राइटेरिया जो है मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक एक पॉइंट भी मैच नहीं करेगा तो वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नहीं आएगा, राइट। तो दिस कुड बी अ रीजन, या वो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं है या बनने वाला है, तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी स्क्रीन में एनएचपीसी का हेड एंड शोल्डर बन रहा है या कंफर्म? ओके, प्लीज एक्सप्लेन माय क्वेरी। वसंत जी क्या क्वेरी था? आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट इन दी so many questions. You can just repeat your question so that I can, when can we exit from the first target, when to take entry in the second target? अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है तो जो आपका स्टॉप लॉस नीचे था, ठीक है, जो आपका ब्रेकआउट वो आप कॉस्ट में ला सकते हैं। यू कैन ब्रिंग योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। सपोज मैंने 100 पे बाई किया, ओके, तो अच्छा एक मिनट, बंद कर। तो जो स्टॉक्स आपने क्या बोला था, सॉरी, हाँ, तो जब फर्स्ट टारगेट सपोज मैंने 100 रुपीज पे स्टॉक लिया, आई एम जस्ट गिविंग एक आर्बिट्री नंबर, 100 रुपीज पे मैंने स्टॉक लिया, उसका स्टॉप लॉस मैंने रखा था 90 रुपीज, राइट। अब वो प्राइस हो गया 110, राइट, आई एम 10 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मैंने जब प्राइस 110 हो गया है, बट मेरा स्टॉक टारगेट है 100, सेकंड टारगेट मेरा बन रहा है 135 का, राइट। तो मैं 110 अभी आ रहा है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, तो व्हाट आर द सिनेरियोज आई कैन यूज? आई कैन यूज दैट, आई कैन बुक 50% ऑफ माई प्रॉफिट। मैं 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट, और अपना स्टॉप लॉस जहां था वही मैंने रख दिया, राइट। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना बुक नहीं करूंगा, मैं पूरा 100% पोजिशन वहीं
स्टॉप लॉस जो मेरा 100 में मैंने जो स्टॉक लिया था 90 पे रखा था, अब वो प्राइस अभी करेंटली 110 है, अब वो स्टॉप लॉस को मैं 100 नहीं, मैं 90 नहीं, अब 100 रख दूंगा एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब अभी भी कॉस्ट के 10% प्राइस मेरे ऊपर है। अगर वहां से स्टॉक 10% गिरेगा भी तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा अगर गिरता है तो। अगर वहां से वो बढ़ने लगता है 120, 125, 130 जाने लगता है, अगर मान लीजिए 125 चला गया, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 110 कर लूंगा। ठीक है, तो वैसे ही करते करते मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना मूव करता जाऊंगा और अपना प्राइस टारगेट बढ़ाता जाऊंगा ऊपर। राइट, ओके, थैंक यू दिनेश जी फॉर द फीडबैक। कैंडल्स इन अ फ्लैग, कितनी कैंडल्स होना चाहिए, वसंत जी का क्वेश्चन था, कैंडल्स कितनी होनी चाहिए। सो इस नंबर ऑफ कैंडल्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि वो पर्टिकुलरली एक आपका एक रेंज बना देना चाहिए, एक फ्लैग। ठीक है, और आपके पोल से बड़ा फ्लैग नहीं होना चाहिए, ये जो पोल है इससे बड़ा फ्लैग नहीं होना चाहिए। द फ्लैग शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस पोल। नंबर ऑफ कैंडल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ओके, बट द फ्लैग शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस पोल। ठीक है, ओके दर्शन जी। तो ये 10 कैंडल में भी बन सकती है, 5 कैंडल में भी बन सकती है, 15 कैंडल में भी बन सकती है। राइट, ओके, तो ये अपने ने देखा था बुलिश फ्लैग। नाउ आई विल गो टू सम बेयरिश फ्लैग पैटर्न्स। सी द एजेंडा इज नॉट टू शो दैट क्या राइट हुआ रॉन्ग हुआ, द एजेंडा इज सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग वो लर्निंग पॉइंट, द एजेंडा इज लर्निंग पैटर्न कैसे बन रहे वो समझना। ठीक है, तो बहुत से स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, बहुत से आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे। ठीक है, तो इट विल हैपन इन द मार्केट। ये याद रखिएगा, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है कि आपको वो 100% प्रॉफिट कमा के देगा। देयर इज नो वन, नो स्ट्रेटेजी। इट इज यू हु कैन अर्न प्रॉफिट बाय मैनेजिंग योर ट्रेड। ठीक है, लास्ट क्लास लास्ट सैटरडे मैंने अशोक लेलैंड डिस्कस किया था, आप लोग को कोई थे उसमें, आई डोंट नो इफ यू ऑल देयर। तो मैंने बताया था कैसे दो पैटर्न्स में डिस्टिंग्विश करना है, अगर 4 स्टॉक्स आ रहे तो मुझे कौन सा स्टॉक लेना है। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक लेना है वो मैंने बताया था डिस्टिंग्विश करना। अगर बुलिश फ्लैग में भी चार स्टॉक्स आ रहे बट मुझे एक लेना है तो मैं कौन सा लूं। ठीक है, वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि कैसे उसको करना है। कोई उसमें से है तो प्लीज आप लोग बताइए मुझे इफ यू हैव अटेंडेड दैट। अशोक लेलैंड में भी हूं मैं एट 178। ठीक है, अशोक लेलैंड में आप लोग हैं जिसमें है वेरी गुड, उसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट पैटर्न का टारगेट ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, उसका फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। ओके, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, उसमें वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का था। चिराग जी वो मैं जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आऊंगा देन वी विल डिस्कस। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि पैटर्न्स में आपके 10 स्टॉक्स आएंगे बट उसमें से भी आप बेस्ट स्टॉक्स कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो उसमें भी आप बेस्ट पैटर्न कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि कैंडल का मोमेंटम देख के, कैंडल का यू नो लेंथ कितना है, वॉल्यूम कितना है, कैसे ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू सी। दिस चार्ट पैटर्न्स आपको एक वो बोलते हैं ना ओवरऑल व्यू बता देता है कि ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको आप और कितना अच्छा गार्निशिंग कर सकते हैं, कितने और अच्छे सजा के निकाल सकते हैं, इससे बेस्ट स्टॉक्स और कैसे निकाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं। आरएसआई यूज कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, आरएस यूज कर सकते हैं। विवेक सर का आप आरएस मॉडल अगर आप लोग ने देखा है तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। कोई स्टॉक में बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, राइट, उसका आरएस अब 50 है, आरएसआई अब 50 है, आरएस पॉजिटिव है और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है, बाई में है, तो वो स्टॉक्स में आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, और कोई स्टॉक आपका बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट दे रहा है बट उसका आरएस नेगेटिव है, 0 है, तो वो स्टॉक को नहीं मैं बाय करूंगा। मैं एक वो बुलिश पैटर्न को फ्लैग को बाय करूंगा जिसका आरएस भी पॉजिटिव है, आरएसआई भी 50 है और सुपर ट्रेंड भी बाय है। ठीक है, एक स्टॉक है जिसका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए मेरा बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक स्टॉक है जिसका आरएसआई अबव 50 है, सुपर ट्रेंड बाय है और आरएस पॉजिटिव है और बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, राइट। और एक स्टॉक और है जिसका आरएसआई बिलो 50 है, ठीक है, आरएस बिलो 0 है मींस नेगेटिव है एंड सुपर ट्रेंड आपका नेगेटिव है बट वो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। तो कौन सा स्टॉक आप लेंगे? यू ऑल नो द आंसर। आप वही लेंगे जिसमें आरएस भी पॉजिटिव है, आरएसआई भी
above 50 और सुपर 20 बाय और ब्रेकआउट भी हुआ है, तो दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस टू बाय दैट स्टॉक, राइट? तो वो आप बाय करेंगे। तो यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को रखना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी ने बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट में स्टॉक लिया जिसका आरएस नेगेटिव है और आरएस भी नेगेटिव, आरएसआई बिलो 50 है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, बट बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो बोलता है सर आपका पैटर्न वर्क नहीं करता है, आपने तो बोला बुलिश फ्लैग अच्छा परफॉर्म करता है बट मेरा तो लॉस हो गया। Why? Because we have not taken all these things into consideration. आपको और भी चीजें साथ साथ देखनी है। चार्ट पैटर्न इज जस्ट एक पार्ट है, उसके साथ यू कैन ऐड और भी इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, अच्छा मैं बता देता हूँ, दिनेश जी का रिक्वेस्ट है वो अशोक लेलैंड को डिस्कस करना, ठीक है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, सो एक बार बुलिश फ्लैग देखा मैंने, अब अपने एक बार बेरिश फ्लैग भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे काफी आए हैं आलोक, ये रिसेंट में पहले देखते हैं कुछ आया है कि नहीं। रिसेंट में कोई स्टॉक्स नहीं आया है। ओके, अपना पुराना है इंड्योरेंस, जी एंटरटेनमेंट, अच्छा एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप एक बुलिश मार्केट में हैं और एक बियरिश मार्केट में हैं, अगर बुलिश मार्केट में आपको दो चीज मिल रही है, एक बुलिश ब्रेकआउट मिल रहा है और एक बियरिश ब्रेकडाउन मिल रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक मार्केट का अप है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अ बुलिश ब्रेकआउट। दोनों, एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है, एक बेयरिश ब्रेकडाउन दिया है, राइट? एंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज अप, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं सर ओवरऑल ट्रेंड मार्केट अप है या डाउन है, ये कैसे समझूंगा, राइट? तो दे आर डिफरेंट वेज जिससे आप समझ सकते हैं। पहला तो आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं। मूविंग एवरेज में दे आर थ्री पार्ट्स, 20-day मूविंग एवरेज, 50-day मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग डे एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? दैट इज 200 डे के अगर ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज अप। 20 डे बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, अगर 20 डे के नीचे चला जाता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका बेयरिश हो जाता है, और 50 डे आपका मीडियम टर्म। तो ये 20 से लेके 50, कोई भी बुलिश मार्केट में 20 to 50 डे मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट लेवल। ओके, 20 to 50 डे मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, दैट कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट? बट इफ स्टॉक इज, तो वैसे ही उल्टा, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो 20 और 50 डे आपका गुड रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, गुड लेवल टू सेल एट दैट पॉइंट। तो जनरल मार्केट का टेंडेंसी आप वैसे देख सकते हैं, राइट? तो अभी जैसे मार्केट का ट्रेंड क्या है, अगर आप देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 100, तो मूविंग ओवरऑल ट्रेंड अप है, राइट? तो अभी अप है, जैसे लास्ट डे देखा था थोड़ी सेलिंग आई है, तो बुल मार्केट है, थोड़ा करेक्शन होगा मार्केट में, कोई बात नहीं है, बट वी कैन नॉट से दैट ट्रेंड इज डाउन। 2 दिन बाजार गिरेगा, 4 दिन बढ़ेगा, ये सब होगा, बट ट्रेंड इससे चेंज नहीं होता। ट्रेंड चेंज इज अ वेरी बिग फैक्टर। हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा 200-400 पॉइंट का सेलिंग नहीं आता है, हम लोग बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, सेल हो गया, बाजार सेल हो गया। इट इज नॉट दैट। ट्रेंड चेंज इज अ वेरी बिग फैक्टर। अभी मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया। ट्रेंड चेंज इज अ चेंज ऑफ सीजन। ट्रेंड चेंज इज अ चेंज ऑफ सीजन। एंड अपने जो होता है, थोड़ी बहुत जो सेलिंग आती है, वो होता है चेंज ऑफ वेदर। चेंज ऑफ वेदर, जैसे अभी गर्मी थी, अचानक से बारिश आ गई, तो क्या गर्मी खत्म हो गई? ये पॉइंट अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैं बता दे रहा हूँ। सो जस्ट आई डोंट नो स्टॉक मार्केट से कितना वैलिड है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड चेंज इज नॉट दैट सिंपल, ठीक है? सो अभी जैसे गर्मी थी, आज बारिश हो जाती है, तो क्या हुआ, वेदर ठंडा हो गया, चेंज आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, गर्मी खत्म हो गई, कल वापस से गर्मी आएगी। ओके, तो सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट, ट्रेंड चेंज इतनी आसानी से नहीं होता, इट इज लाइक अ सीजन चेंज। अगर आज मार्केट अप ट्रेंड था, थोड़ा सा सेलिंग आ गई कुछ पॉइंट्स की, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रेंड चेंज हो गया, राइट? अच्छा एग्जांपल हमको लगता है मिल गया। ओके, सो डू यू ऑल अग्री विद दिस? तो ट्रेंड चेंज बहुत बड़ी चीज है, अपने फटाक से नहीं सोच लेना चाहिए कि ट्रेंड चेंज है। ट्रेंड चेंज विल टेक टाइम, टाइम लगता है ट्रेंड चेंज होने में, ठीक है? तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी। हम लोग थोड़ी सी सेलिंग आती है कि हम लोग सोचते हैं मार्केट बेयरिश हो गया, बेयरिश हो गया, वो थोड़ा करेक्शन होता है, ठीक है?
कोई भी चीज बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो उसको काउंटर पार्ट करने के लिए कुछ हो जाता है। बहुत गर्मी पड़ जाती है तो बारिश हो जाने लगती है, ठीक है। तो बहुत कभी सर्दी पड़ती है तो कभी कदा बहुत अपने को धूप मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेम थिंग हैपेंस, कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए नेचर का वो होता है, तो वैसे अपने स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाने से वो ये होता है, ठीक है, उसको काउंटर हो जाता है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल थिंग जो हम लोग कर रहे थे। तो जी इंटरटेनमेंट देख सकते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पे बेयरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो प्रायर ट्रेंड ये आपका क्या हुआ, पोल हो गया था, ये आपका फ्लैग हो गया था, एंड यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो अभी भी ये ट्रेड एक्टिव है क्योंकि ये अपने उसके नीचे ही चल रहा है, प्राइस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे ही चल रहा है। अगर आप यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बताता, अगर कोई बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो इस कैंडल के ऊपर या इस रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ के ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो रख सकते हैं। और लास्ट जो होगा वो इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर अगर आप रखते हैं चला जाता है स्टॉक, तो वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। ओके, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस में देखिए यहाँ पे एक दिन ब्रेकडाउन दिया, ये आपका पोल बना, ये आपका फ्लैग बना, ब्रेकडाउन दिया, देन इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप। तो इसमें आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस रखते तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता। अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर रखते तब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, इसके ऊपर हाई पे रखते तब भी स्टॉप ट्रिगर होता, और यहाँ पे भी आप इस हाई के ऊपर भी रखते तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता। सो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ऐसा सोचने का नहीं है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है, दे विल हैपन। बट आपको ये नहीं है कि स्टॉप लॉस में एक में ट्रिगर हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट ट्रेड आऊंगा तो मैं नहीं लूंगा, नेक्स्ट ट्रेड आएगा तो नहीं लूंगा। तो जनरली ये होता है टेंडेंसी, मैंने देखा है बहुत लोगों का, कि अगर एक दो स्टॉप लॉस ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, मैंने दो ट्रेड ली, मैंने मान लीजिए बुलिश फ्लैग या बेरिश फ्लैग में दो ट्रेड ली और फर्स्ट टू ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आई विल से कि ये बकवास है, ये काम नहीं करता है, ये लॉस होता है, मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। और जब वो थर्ड ट्रेड आती है मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूँ, और वो ट्रेड मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाती, बट आई एम नॉट दैट इन दैट ट्रेड। सो इससे क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, दैट यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है, पेशेंस रखना होगा और आपको एटलीस्ट 10 to 15 ट्रेड्स ट्राई करना होगा, ठीक है। यू हैव टू, ये आपका पहले दो ट्रेड में अगर मान लीजिए आपका टारगेट अचीव हो गया, तब भी क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट ही आएगा, वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। तो वो स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो वो स्टॉप अगर वो वापस नीचे गिर जाता है, थर्ड स्टॉक आप अगर लेते हैं वो नहीं चलता है, तो आपका उसमें जो दो में प्रॉफिट आया है वो एक में लॉस नहीं निकल सकता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड, हर ट्रेड को आपको इक्वली रिस्पेक्ट करना है। हर एक बार आप ट्रेड ले लिए हैं तो उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस 10 to 15 ट्रेड्स में अगर आप फॉलो करेंगे यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट अगर आप दो तीन ट्रेड में नहीं लेते हैं, दो तीन ट्रेड लेते हैं और फिर नहीं लेते हैं, तो वो आपको फिर वो चीज नहीं आ पाएगी, वो डिसिप्लिन नहीं आएगा। ओके, तो साइकोलॉजी 80% इज साइकोलॉजी इन द मार्केट एंड 20% इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 20% है। ये जो है ना, ये चार्ट पैटर्न्स बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, बहुत लोग चार्ट पैटर्न्स जानते हैं, ये नहीं कि हम और आप ही जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो क्या सब कमा पाते हैं? नहीं। जिनकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है ना, दे कैन अर्न इन दी मार्केट, ठीक है, जो डिसिप्लिन होते हैं। तो डिफरेंट डिसिप्लिन ट्रेडर कैन अर्न इन दी मार्केट। इवन आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है बट आप डिसिप्लिन नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अर्न इन दी मार्केट। बट इफ यू आर डिसिप्लिन एंड और स्ट्रेटेजी आपकी उतनी अच्छी नहीं भी है तब भी यू कैन अर्न। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन, लेट मी चेक सर, बेयर स्टॉक में सेल कैसे करें, जीरो दाम में जब सेल करने का दिखाता है तो 90 के फंड रिक्वायर्ड बोलता है। सर दैट डिपेंड ऑन योर स्टॉकेज ब्रोकर दयानंद जी, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, आप वो ब्रोकर से बात करें। आप देखिए जनरली सेल जो होता है आपका एफएनओ में होता है, फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट्स में होता है। अगर कैश मार्केट में करते हैं तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए वैलिड होता है, क्योंकि आप सेल करके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो ऑप्शन में चला जाएगा, उसमें बहुत बड़ी पेनाल्टी लग जाती है। तो जब भी आप इंट्राडे में अगर सेल कर सकते हैं कैश स्टॉक्स को, वो भी आपको 3:20 तक में स्क्वायर ऑफ कर लेना होगा। एफएनओ में आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बट कैश मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो जब बेयरिश पैटर्न्स और ये सब जो बनते हैं उनका मैं कैसे यूज करूँ कैश मार्केट में, तो मान लीजिए कोई स्टॉक आपके डीपी में है, कोई बेयरिश पैटर्न बना है तो उससे आप निकल सकते हैं, या कोई स्टॉक आप लेने का सोच रहे हैं और बेयरिश पैटर्न बना है तो आप वेट कर सकते हैं उस स्टॉक को अभी नहीं लेने के लिए।
यू कैन वेट कि स्टॉक अभी बेरिश पैटर्न बना है, थोड़ा इसको सपोर्ट लेने दो, रिवर्सल होने दो, इसका स्ट्रेंथ शो करे, देन आई विल बाय. So this is how you can use this in cash market. Okay. और जो आपका उसका प्रॉब्लम है, ब्रोकर का प्रॉब्लम, दैट यू कैन डिस्कस अबाउट मार्जिन, वो आपके ब्रोकर सॉल्व आउट करेंगे. ओके दयानंद जी. सर बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इफ वी पुट स्टॉप लॉस ऑर्डर वी कांट पुट टारगेट ऑर्डर सोल्यूशन फॉर दैट. बहुत से जो होते हैं स्टॉप पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाने देते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगाने. तो एक और क्वेश्चन मेरे पास लास्ट लास्ट टाइम में आया था कि अपना गुड टिल डेट ऑर्डर, जीटीडी ऑर्डर जो होता है, ये जीटीडी ऑर्डर लगा के छोड़ दे या एवरीडे न्यू ऑर्डर लगाए स्टॉप लॉस के लिए. तो मैंने कहा था कि जीटीडी ऑर्डर नहीं लगाने के लिए. उसके पीछे रीजन क्या था जीटीडी ऑर्डर नहीं लगाने के लिए? क्योंकि जब मार्केट और जब ओपन होता है तो काफी वॉलेटिलिटी रहती है उस टाइम. उस टाइम में अगर आप जीटीडी ऑर्डर लगा के रखेंगे स्टॉप लॉस का, तो क्या होता है वो वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस कट सकता है और वापस से स्टॉक अपना नॉर्मल अपसाइड मूव पकड़ सकता है. तो इट्स बेटर दैट यू पुट योर स्टॉप लॉस एवरी डे. मार्केट खुलने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी जो होता है ना, 1 मिनट का स्टॉप लॉस, 1 मिनट में फॉल स्टिक्स बहुत सी आ जाती है, किसी के स्टॉप लॉस हंटर जो होते हैं वो लोग ट्रिगर करा देते हैं. ओके. तो ये क्वेश्चन मेरे को लास्ट टाइम आया था, तो अभी मेरे को दिमाग में आया तो मैंने आप लोग से डिस्कस कर लिया. ओके. ओके सो होप दिस इज क्लियर. ठीक है. तो बियरिश बुलिश मार्केट में बियरिश पैटर्न्स मत खेलिए एंड बियरिश मार्केट में बुलिश पैटर्न मत खेलिए. तो अभी फॉर एग्जांपल आपको बुलिश मार्केट में अगर बियरिश फ्लैग मिल रहा है, बुलिश फ्लैग मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? गो फॉर अ बुलिश फ्लैग, नॉट फॉर अ बियरिश फ्लैग. तो अब एक पैटर्न मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल. तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मैंने एक्चुअली पूरा बताना होगा, तो मैं पहले पीपीटी में जाता हूँ एक बार मैं. तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है. ट्रायंगल पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. मींस अगर ये अप ट्रेंड में था तो वो अप ट्रेंड में चलता है, और डाउन ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है. ओके. तो ट्रायंगल पैटर्न जो होते हैं वो, ये मैं लास्ट पैटर्न कवर कर रहा हूँ, 3 टाइप के पैटर्न्स है. ठीक है. होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड एंड एंजॉइंग द सेशन. सेशन आप लोग को बोर नहीं हो रहे हैं. ओके. शुड आई कंटिन्यू? ओके. ओके अनिल जी, थैंक यू फॉर एंजॉइंग द सेशन. ओके चिराग जी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. ओके थैंक यू. ओके. ओके मनोज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी. ओके. सो आई एम कंटिन्यूइंग. ओके. तो जब लगता है कि लोग का भी इंटरेस्ट है तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है. फिर जब लगता है कि लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड और मैं बोल रहा हूँ से वो लोग जस्ट इंटरेस्ट से नहीं सुन रहे, तो फिर एक वो थोड़ा डाउन हो जाता है. दैट इज द. तो इसलिए आई कंफर्म कि वेदर शुड आई कंटिन्यू और नॉट. ओके. ओके थैंक यू. सो आई एम कंटिन्यूइंग because most of the participant wants me to continue, so I'll continue. Okay. So triangle pattern जो होता है वो 3 तरह का होता है. पहला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा है असेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल. सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो अपसाइड या डाउनसाइड कोई भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है. असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो सिर्फ अपसाइड ब्रेकआउट देता है, ये बुलिश होता है. और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो डाउनसाइड ब्रेकडाउन देता है, ये बियरिश पैटर्न है. So this symmetrical triangle is a, both pattern. It can give either upside breakout or downside breakdown. Ascending triangle only upside breakout, descending triangle only downside breakdown. ठीक है. तो तीनों का पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा, तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉस करने की कोशिश करता हूँ फटाफट. ओके. ओके. सो ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल. सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका 2 लाइन से बनता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है आपकी हायर लोअर हाई से. लोअर हाई मींस ये हाई जो है इस हाई से लोअर है, और ये हाई जो है इस हाई से लोअर है, ये हाई जो है इस हाई से लोअर है. मींस लोअर हाइस को जब कनेक्ट करते हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है, और हायर लो को जब कनेक्ट करते हैं तो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है.
ठीक है, ये जो लो है इज हायर देन दिस लो एंड दिस लो इज हायर देन दिस लो एंड दिस लो इज हायर देन दिस लो। तो इसको जब कनेक्ट करते हैं तो अपने को एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलती है। ओके, तो वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। और ये है एक ट्रेडिंग रेंज, ये एक रेंज में ट्रायंगल के अंदर में ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस रहता है, इसलिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है। तो ये कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करता है, और जब इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट कर देता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर, वी कॉल इट इज अ बुलिश ब्रेकआउट, वी कॉल इट अ बुलिश ब्रेकआउट। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे बंद कर देता है तो वी कॉल इट इज अ बियरिश ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर है? तो इस पॉइंट के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट है, अपने डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट तो हो गया, अब इसका टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे एंड स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, राइट? तो टारगेट डिसाइड करने के लिए जो सबसे बड़ा कैंडल होगा, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये इस पैटर्न के अंदर जो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको अपने देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये है 200 रुपए, ये हाई जो है 200 रुपए है और ये लो है 150 रुपीज। ओके, तो ये है 200 और ये है 150। ओके, तो 200 माइनस 150 इज 150, मीन्स 50 रुपीज का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे सपोज ब्रेकआउट कैंडल है 170 रुपीज में। ठीक है, सो 170 यहाँ पे ब्रेकआउट प्राइस है, और तो 170 में मैं 50 रुपीज ऐड कर दूंगा। तो 170 में मैं 50 रुपीज ऐड करूंगा तो क्या होगा टारगेट? 220 रुपीज होगा टारगेट, 220 रुपीज विल बी माई टारगेट। ठीक है, तो पेयर कितने पॉइंट्स का टारगेट बना? 50 पॉइंट्स का। तो मैं स्टॉप लॉस कितने का लूंगा? 1:2 के हिसाब से 25 रुपीज का स्टॉप लॉस। 50 का टारगेट है, स्टॉप लॉस कितना करूंगा? 25 रुपीज। ठीक है, तो 25 मीन्स 170 का मेरा 170 का मेरा था बाइंग प्राइस। ओके, उसमें से 25 माइनस करूंगा। ठीक है, तो 145 का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, दिस इज असेंडिंग, दिस इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, क्लियर? तो ये मैं जल्दी से बता दिया हूँ, अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, फिर स्टॉकेज ऐप में जाके इसका एग्जाम्पल देखूंगा। ओके, तो ये देखिए, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ओके, उसके बाद इट हैज गॉन अप। दिस वन एग्जाम्पल, ये पीपीटी आप लोग को शेयर कर दी जाएगी, नॉट टू वरी। ओके, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नीचे का डाउनसाइड ब्रेकडाउन होता है। जैसे मैंने कहा था, इट कैन गिव अपसाइड ब्रेकआउट एज वेल एज डाउनसाइड। तो यहाँ पे डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है। अगर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे बंद होगा तो डाउनसाइड ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया, और उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। तो असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? असेंडिंग ट्रायंगल में देयर इज वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, जैसे अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखा था, एंड देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन। एक देखिए फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपके इक्वल हाइट से बनती है। दीज हाइट्स आर इक्वल। उसमें क्या था? लोअर हाइट था, इसमें क्या इक्वल हाइट है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, और प्राइस यहाँ पे आपका इसका ऊपर ब्रेकआउट हो गया। तो प्राइस हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल। इसके अंदर जब तक ट्रेड रेंज में था तो वहां पे डिमांड सप्लाई वाज बैलेंस, डिमांड एंड सप्लाई वाज बैलेंस। यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तो डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है, एंड प्राइस स्टार्टेड टू मूव अप। ओके, इसका भी टारगेट कैसे निकालेंगे? ये हाई और ये लो का डिफरेंस जैसे अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में निकाले थे, सेम वे विल यूज द टारगेट इन दिस केस ऑल्सो। तो ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर अपने ये डिफरेंस को ऐड करेंगे टू गेट द टारगेट। आई एम नॉट रिपीटिंग इट। ओके, एंड स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा था, सेम इट कुड बी आइदर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ले सकते हैं, या इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे बंद हो सकता है तो ले सकते हैं। और एक और भी होता है टाइम स्टॉप लॉस। जब आपका मान लीजिए 2-3 महीना हो गया स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से भी निकल सकते हैं। ओके ओके, सुनीता जी हैज ऑलरेडी आई थिंक आप लोग को ये पैटर्न शेयर कर दिया है पीपीटी। ओके, आप लोग देख सकते हैं उसको बाद में। सो दिस इज अगेन असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ओके, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है? ये आपका इक्वल लोज बनते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल बना था, और यहाँ पे जैसे असेंडिंग ट्रायंगल अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, इसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। यू कैन सी देयर इज वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई बैलेंस था, स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन अ रेंज। यहाँ पे बार बार सपोर्ट मिल रहा था प्राइस को, तो प्राइस ऊपर जा रहा था, बट वहां पे फिर रेजिस्टेंस मिल के नीचे आ जा रहा था, तो प्राइस ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहा था। बट यहाँ पे डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हुआ एंड प्राइस हैज गिवन अ ब्रेकडाउन।
उसके बाद द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, ठीक है। बट अगर ऊपर बंद हो जाता है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। दिस पैटर्न विल बिकम इनवैलिड अगर इसके ऊपर बंद हो जाता है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल है। नाउ मैं जल्दी से एक बार आप लोग को स्टॉकेज के ऐप में लेके चलता हूँ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए अशोक लेलैंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था 26 अप्रैल को, ठीक है। ये अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे लास्ट सैटरडे को। तो 180.07 पे ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। तो ये है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये एक आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, यू कैन सी देयर इज वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड दिस इज अनदर वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। एटलीस्ट 2 पॉइंट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिला है 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2 पॉइंट्स मिले अपने को। तो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिली, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिली, और यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो नाउ आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट टू टेल मी व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक एज पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। चलिए कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करके प्लीज शेयर विथ मी। एनी आंसर्स? मैंने निकाल लिया टारगेट। आई थिंक वी डिस्कस एनएचपीसी टुडे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टारगेट प्लीज। मैंने बता दिया, एनएचपीसी भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मनोज जी का टारगेट है 200 एंड मंजू जी का टारगेट है 209। चिराग जी बोल रहे हैं 29, तो मीन्स 29 रुपीज होगा, आई थिंक पॉइंट बोल रहे हैं चिराग जी। ओके मंजू जी 209। एनी मोर टारगेट्स? ओके या ओके 29 रुपीज, ओके परफेक्ट। अश्विन जी भी बोल रहे हैं 209, ओके। एनी मोर आंसर्स? 210 KU, गिरीश जी 210, दयानंद जी 209, ओके। सो परफेक्ट, 209 and 210 is a perfect target. Perfect अभिषेक जी, perfect चिराग जी, 209 10 परफेक्ट परफेक्ट। तो 209 से 210 जो भी टारगेट दिया है परफेक्ट टारगेट मिला है अपने को, ठीक है। 240 रामविलास जी का टारगेट आ रहा है 240, ओके। सुनील कश्यप जी 209, ओके। सो 209 210 इज अ परफेक्ट टारगेट, क्योंकि अपने ने ये हाई लिया, ये हाई था अराउंड 187 मैंने लिया, ओके। और ये लो को मैंने लिया, ये लो था मेरे को 157 का लो मिला, ओके अराउंड। तो अराउंड 30 पॉइंट्स का डिफरेंस अपने को मिला, जो कि मैंने 180 में ऐड किया। सो 180 प्लस 230 मतलब 210। तो 210 के आसपास में स्टॉक का टारगेट आया, ठीक है। तो स्टॉक ने हाई कितना बनाया? अभी स्टॉक ने 205 का ऑलमोस्ट टारगेट के पास में है, 205 के पास में, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ 205 के पास में स्टॉक टारगेट है, टारगेट के पास में इसने एक बेयरिश कैंडल बना दी, एक स्पिनिंग टॉप है एक्चुअली, इट्स नॉट, इसको पूरा बेयरिश नहीं बोलते था, इट्स अ स्पिनिंग टॉप, जो कि एक न्यूट्रल कैंडल है, बट रेड में बंद हुई है। तो बट मार्केट में भी, ओवरऑल मार्केट में भी कल प्रेशर था, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे 110 का इसका टारगेट बन रहा है, ओके। तो जो ज्यादा जो नहीं देख सकते, जिन्होंने 180 बाय किया है, जिनको डर लग रहा है कि मार्केट वीक है, वो लॉस में जा सकता है, वो तो प्रॉफिट बुक कर ले, तो कल 205 7 पे मिलता है या 4 पे मिलता है या 200 के आसपास में भी बुक कर सकते हैं, ओके। या फिर दो लोग चाहते हैं कि नहीं ये नीचे जा सकता है काफी, वो लोग और तो अपना बट थोड़ा नीचे करेक्शन दे के ये वापस ऊपर जाएगा, तो वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख सकते हैं, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो नाउ द ट्रेड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। एंट्री तो आपकी हो चुकी है, अब ट्रेड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, टारगेट के भी आसपास में है, राइट। तो ये हो गया टारगेट।
तो स्टॉप लॉस मैंने कहा था जो आपके हिसाब से रख सकते हैं, मैंने कहा था कि ब्रेकआउट कैंडल, तो जब आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका पहला स्टॉप होता इसके नीचे, ओके 177 के नीचे या 175 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके 1:2 के हिसाब से स्टॉप लॉस रखते तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखते, मींस 180 पे अगर एंट्री हो रहा है तो 165 के आसपास में आप स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके तो 165 के हिसाब से रखते हैं आप स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आता, तो जो कि बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बन जाता, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड ही चेंज हो जाता आपका। तो 165 का स्टॉप लॉस रख सकते थे आप, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं वो 175 का स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो मैं यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप लॉस है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिस्क कैपेसिटी, जिनका जिनका है उनके उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके तो ये था अशोक लेलैंड। दिनेश जी होप ये आपका भी क्वेरी था, क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री पॉइंट? देखिए टारगेट के हिसाब से तो आपका ये अचीव हो जाएगा अगर पैटर्न के हिसाब से आप खेलना चाहते हैं, राइट? कुमार जी अगर आप पैटर्न के हिसाब से खेलना चाहते हैं तो 200 215 में टारगेट अचीव हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें और एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो अब एंट्री आप इसमें कैसे ले सकते हो? और आप एंट्री वापस से ही अपने इसको टेस्ट करता है, तो ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट, अगर करेक्शन देके वापस नीचे आता है, ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करके वापस से घूमना चालू करता है, सपोज 182 180 के पास आके फिर ये वापस से बढ़ना चालू किया, मतलब ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके वापस से बढ़ना चालू किया, देन यू कैन री एंटर। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट अब ऊपर अगर यहाँ से जाने लगा तो मैं क्या करूँ, इसमें एंट्री करूँ कि नहीं करूँ? अगर आप इसमें एंट्री करते हैं 215 के ऊपर भी एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस अपना फेल करके 195 के नीचे स्टॉप, ये जो लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के करना होगा। ओके इसका लो है 194 का स्टॉप लॉस है, तो वन, और इसका क्लोज अगर आप देखेंगे इस कैंडल का क्लोज है, क्लोज नहीं दिया हुआ, सो अराउंड 190 के स्टॉप लॉस के हिसाब से वापस से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ट्रेड मैनेजमेंट होगा। आप 215 पे बाय करके अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 165 का स्टॉप लॉस रखना बहुत वाइड स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट? तो वी कैन नॉट कीप दैट मच स्टॉप। अगर 180 के पास आता है वहां पे आप लेते हैं तो यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस 165, नो प्रॉब्लम। ओके तो ये अशोक लेलैंड का था। वैसे बहुत से स्टॉक्स होते हैं, और मैंने एक एग्जांपल दिया था और भी कि एक पैटर्न बना था जिसमें भी ब्रेकआउट हुआ था, बट अशोक लेलैंड लेना है या वो लेना है? अब जैसे इसमें भी देखिए काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया ये कैंडल, वॉल्यूम भी है, कैंडल का मोमेंटम भी, और एक अच्छे लेंथ के साथ में बढ़ा है कैंडल, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का जो साइन होता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे रहा, वॉल्यूम भी है, कैंडल भी वाइड है, बिग कैंडल है, तो उसका चांसेस हायर है कि वो राइट ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ देखना जिसमें फेल हुआ हो स्टॉप लॉस। ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया है बट ये राइट ही हो गया। बट मुझे अब मान लीजिए एग्जांपल अशोक लेलैंड और ये में दिया होता, ये कैंडल मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं लग रहा है कंपेयर टू अशोक लेलैंड। अगर मुझे अशोक लेलैंड, अगर इस पॉइंट पे मैं होता, यहाँ पे आज खड़ा होता और अशोक लेलैंड का भी ब्रेकआउट के दिन के पे खड़ा होता, तो मैं अशोक लेलैंड, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, इस दिस दोजी कैंडल के पास में, और अशोक लेलैंड में भी मैं यहाँ पे हूँ। ओके मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर इन दोनों में मुझे लेना पड़ता तो मैं कौन सी में लेता? मैं अशोक लेलैंड में लेता। ठीक है, मैं अशोक लेलैंड में लेता, मैं आयशा मोटर में नहीं लेता, क्योंकि ये जो कैंडल का जो आयशा मोटर, ये जो वो कौन सा था स्टॉक था, दैट वाज विच स्टॉक? हाँ स्टर्लिंग। तो मैं इसका जो कैंडल है ये मुझे ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन है, बट वो एक अच्छा कैंडल, हालांकि दोनों का स्टॉक्स चला, ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं दोनों में से कौन सा लेता, मैं अशोक लेलैंड लेता। क्योंकि इस कैंडल में क्या है, उतना कन्वेंश मुझे उतना कन्वेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बंद नहीं हुआ है। ठीक है
तो वो डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ। अगर दो स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं तो वो दो में कौन सा चुनना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यू नो थिंग टू रिसर्च ऑन। ठीक है, वो आपका पार्ट है। स्टॉकेज आपको स्टॉक निकाल के दे रहा है, बट फर्दर एनालिसिस उसको आप और कितने अच्छे से कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? तो वैसे ही अब आपका असेंडिंग ट्राइंगल है। असेंडिंग ट्राइंगल में रिसेंट में देयर इज एनी, हाँ रिसेंट में यस बैंक में आया है। ओके वही मैं आपको जो बताना चाह रहा था, देखिए यस बैंक में ब्रेकआउट हुआ, बट द ब्रेकआउट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग। यहाँ पे देखिए वो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो इस ये सब ब्रेकआउट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं लेके। ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर यही ब्रेकआउट मुझे कोई एक अच्छी बड़ी कैंडल से दिया होता यहाँ पे तो मैं उसको इंपॉर्टेंस देता। ऐसा नहीं, देखिए ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बट द चांसेस आर हायर कि वो ऊपर जाएगा, टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक अच्छी लॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो सकता है, देन ऑल्सो इट कैन ट्रिगर, बट चांसेस आर लेस। ओके, तो ये था आपका असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब पास्ट में यू कैन सी सम पैटर्न्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड इन असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, एलेम्बिक फार्मा बना था 12 जून को। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया, कन्वेंशन लग रहा है मुझे, कन्विक्शन मिल रहा है कि मैं ये अच्छा ब्रेकआउट है, क्लियरली उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट के टाइम में, तो आई विल गो विद दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देखिए क्या अच्छा एग्जांपल मेरे को मिल गया कि यहाँ पे देखिए कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर गया बट प्राइस में एक विक बना दी, अपर शैडो बना दी प्राइस नीचे, और यहाँ पे भी इनडिसीजंस आ रहे हैं। तो प्राइस का देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं रहा और प्राइस हैज गॉन डाउन बिकॉज द ब्रेकआउट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग। तो आपको वहां पर मान लीजिए एलिकॉन मिल रहा है और आपको एलेम्बिक मिल रहा है, इफ दे आर टू स्टॉक्स टू चूज इन बिटवीन एलेम्बिक एंड एलिकॉन, तो आप कौन सा चूज करेंगे? इस कैंडल के ब्रेकआउट का डिफरेंस देखिए, आप लोग सब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कैसा हुआ है। अब यू विजुअलाइज दिस नाउ। ठीक है, अच्छे से देख लिया। अब ये मैं जा रहा हूँ एलिकॉन, इसका भी ब्रेकआउट देख लीजिए कैसे हुआ है। तो ब्रेकआउट यहाँ पे विक्स बना दी, ब्रेकआउट कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई ऊपर, अगर ये कैंडल टॉप में बंद हो जाती तो ये ब्रेकआउट बहुत ज्यादा अच्छा कन्विंसिंग होता। हालांकि वॉल्यूम भी थी बट ब्रेकआउट टॉप पे नहीं बन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो आपको स्टॉकेज में बहुत से चार्ट्स मिलेंगे जो पैटर्न्स में आएंगे, बट उसके बाद भी फर्दर रिसर्च, आपको कौन सा स्टॉक लेना है, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, ओन इंडिकेटर्स लगा के, जिससे आप फर्दर उसका परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज बोरोसिल रिन्यूएबल। सी इट हैज गिवन अ वेरी गुड, इसमें देखिए कोई लोअर शैडो विक नहीं है, अपर शैडो विक, कोई भी अपर शैडो विक नहीं, ऊपर में बंद हुआ है। तो इट हैज कन्विंसिंग ब्रेकआउट, तो प्राइस गॉन अप। तो ये सब चीज थोड़ी थोड़ी सी आप अपने देखेंगे तो अपने इससे लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपना हिट रेशियो बढ़ा सकते हैं। दैट इज द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू। ठीक है, क्लियर? ये डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बना था, पहले बना होगा, आई हैव टू चेंज द टाइम फ्रेम। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बना था। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे गया, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे ब्रेकडाउन, यहाँ इस कैंडल में तो कन्विंसिंग नहीं था, बट इस कैंडल में ब्रेकडाउन वाज कन्विंसिंग। ओके, बट उसके बाद भी स्टॉप अगर आप इसमें सेल करते होते तो प्राइस लॉस होता, प्राइस ऊपर बंद हुआ। हाँ नीचे भी करना चाहिए। हाँ नीचे करने से भी करना चाहिए। हाँ, नीचे का। ठीक है, सॉरी। ओके,
ठीक है, ओके क्लियर। सो दिस इज महिंद्रा का बेयरिश पैटर्न था, ठीक है। तो और भी एक चीज आपको मैंने जो बहुत स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर बुलिश मार्केट में अगर आप बेयरिश पैटर्न यूज करेंगे तो चांसेस आर कि ज्यादातर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का देयर इज अ हाई चांस इफ यू आर यूजिंग इट ऑन अ बुलिश मार्केट। सो बुलिश मार्केट में अवॉइड यूजिंग बेयरिश पैटर्न्स। ओके, होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल। मैंने तीनों पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं, बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग एंड देन सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो विद दिस आई वांट टू एंड द सेशन एंड लास्ट जाने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हाउ कैन आई सी ओल्ड वीडियोस? आई एम न्यू टू स्टॉकेज वेयर आई कैन गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। ऑल द रिकॉर्डिंग्स यू कैन, आप अगर स्टॉकेज क्लब में अगर आप हैं तो क्लब में हैशटैग रिकॉर्डिंग करेंगे, ओके क्लब में जाके तो वहां पे आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, आप वो वहां हैशटैग क्लब में जाके हैशटैग रिकॉर्डिंग्स करेंगे तो यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। ओके, आई एम यू। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक? Yeah, we have back tested the Pramoji, we have back tested the patterns. Okay, it has been formed by back testing the patterns. Among the triangle patterns, which is one is the most powerful based on back? See, among the patterns, I have seen that the symmetrical triangle works best. Symmetrical triangle has a better performance over other. Okay, Pramoji. Okay, so thank you everybody. Okay, for premium members, are the recordings available? Sunita ji, are you there? Yes, I am there. So Okay. for premium I think members, you can yes, the recording discuss is this over, available. to the customer support team. Okay, they will help you with this, from where to get the recordings and who can see the chart patterns and all. Okay, so you can get in touch with customer support team. They will help you who are eligible to get the recordings and who can see these chart patterns. I'm not very much aware of this, so you can I'll request you to contact with customer team. They will help you with this. Okay, Devi ji. Yeah, you'll get the recording. Okay, you can ask the customer support team. They will upload the recording on Monday, I think. Okay. No, we'll So upload thank you it by everybody tomorrow for morning, your sir. time and patience. Hope you have all liked the session. Okay, and next week again we'll have a session on this chart patterns. I'll discuss some other new patterns. Okay. Yeah. Thank you everybody. So I'm ending the session for all of you. Okay. Thank you.